हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर मीनाक्षी अगेन फॉर यू। और आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करने वाले हैं प्लांट किंगडम के थर्ड पोर्शन, दैट इज अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी। ओके, मेरे पहले दो वीडियोस जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, उसमें हमने प्लांट किंगडम का जनरल इंट्रोडक्शन और डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, प्लस एल्गी के बारे में जनरल पढ़ा था। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में। वो किस तरीके की, उनकी क्या हैबिट्स है, उनके क्या हैबिटेट्स हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एंड फाइनली उनकी क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप उन वीडियोस को स्टडी कर सकें प्रॉपर्ली। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Alright guys, so in my last video we had talked about algae in general. So now we are going to take a look at the different classes of algae one by one. So the first type of algae is chlorophyceae. The first class क्या है? Chlorophyceae or green algae. The members of the chlorophyceae are commonly known as green algae. Now what is the structure and उनकी habit क्या है? Plant body could be unicellular also, colonial भी हो सकती है और filamentous भी हो सकती है, and they are usually grass green in color. Why? Because of the presence of pigments chlorophyll A and B. So usually वो green color के होते हैं क्योंकि उनमें chlorophyll A and B pigment present होता है, and these pigments are present in definite chloroplast, right? So now chloroplast can be of different shapes. तो ये क्या हो सकते हैं? Either discoid shape हो सकते हैं, plate like हो सकते हैं, reticulate हो सकते हैं, cup shape हो सकते हैं, spiral हो सकते हैं, या फिर ribbon shape हो सकते हैं. So that means chloroplasts can be of different shape. So discoid type of or disc type of chloroplasts are usually found in chara. So write down the different types. So discoid are found in chara. Reticulate type of chloroplast are found in are usually found in Chlamydomonas species, Chlamydomonas reticulata. Okay, so Chlamydomonas reticulata. This is the example in which reticulate type or network type is found out, and cup shaped are found usually in again Chlamydomonas. So cup shaped are also found in Chlamydomonas, although the species might be different. So Chlamydomonas cup shaped. Next is spiral. Spiral we can find in Spirogyra. Spiral can be found in Spirogyra. Spiral ribbon shaped. Okay, these are found in Spirogyra. Okay, so now we'll talk about their storage of food. So food जो में कहाँ store होता है food? So some members have one or more storage bodies known as pyrenoids, which are located in the chloroplast. So question आता है, what are pyrenoids? Pyrenoids contain protein besides starch. They have both starch and protein. And some algae may also store the food in the form of oil droplets. Green algae usually have a rigid cell wall which is made up of an inner layer of cellulose and outer layer of pectose. तो ये सारे के सारे हमने याद रखने हैं कि जो ग्रीन एल्गी है उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है? इनर लेयर जो है वो सेलुलोज का और आउटर लेयर जो है वो पेक्टोज का बना हुआ होता है. Alright, now next जो पैराग्राफ है उसमें we are going to talk about the reproductive process. So reproduction in case of algae. So reproduction in case of green algae usually takes vegetatively by fragmentation और asexual by the formation of different spores. Asexual reproduction जो किससे होती है? Flagellated zoospore से, जो किस में बनते हैं? sac like structures which are known as zoosporangia. इसके अंदर ये spores बनते हैं. Sexual reproduction जो है वो किस में होती है? फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल्स होते हैं, और ये आइसोगैमस भी हो सकती है, एनाइसोगैमस भी हो सकती है और ऊगैमस भी हो सकती है. ग्रीन एल्गी के एग्जांपल्स हैं Chlamydomonas, Volvox, Ulothrix, Spirogyra and Chara. Even Chlorella is a green algae. So I hope यहाँ पे आपको ग्रीन एल्गी के बारे में समझ में आ गया. इन केस आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं और मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगी. ओके, सो दिस वाज क्लोरोफाइसी और ग्रीन एल्गी फॉर यू.
Next, we are going to talk about is phaeophyce or brown algae. Okay, so these are brown algae and primarily कहाँ found out होते हैं? These are brown algae and are found primarily in the marine या फिर sea salty habitats. They show a great variation in size and form. अब इनमें सिंपल ब्रांच जो हैं और फिलामेंटस फॉर्म्स है, उसके एग्जांपल क्या है? एक्टोकार्पस. सो एक्टोकार्पस इज ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है. whereas profusely branched is represented by kelps which may reach a height of 100 meters. सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है विच इज़ दी टॉलेस्ट एल्गी. ओके, सो जो टॉलेस्ट एल्गी हैं वो कौन से टाइप की हैं? ब्राउन एल्गी है और वो कौन सी है? केल्प्स. सो केल्प्स आर दी टॉलेस्ट एल्गी विच बिलोंग टू ब्राउन एल्गी और फियोफाइसी. क्लोरोफिल्स कौन से होते हैं इसमें? ए और सी. केरोटिनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं और जैंथोफिल्स भी प्रेजेंट होते हैं. दे वेरी इन कलर फ्रॉम, कलर क्या होता है इनका? ऑलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ जैंथोफिल. जिनमें जैंथोफिल कम होता है वो जैंथोफिल का कौन सा नाम है इसमें? फ्यूकोजेंथिन. सो दैट मीन्स जिनमें फ्यूकोजेंथिन कम होता है वो ऑलिव ग्रीन कलर के होते हैं और जिनमें फ्यूकोजेंथिन जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे वो ब्राउन इन कलर होते जाते हैं या फिर उनमें शेड्स ऑफ ब्राउन जो है वो इंक्रीज होता जाता है. क्लियर? नाउ स्टोरेज ऑफ फूड. जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की तरह स्टोर होता है. कौन सी फॉर्म में? लैमिनारिन और मैनिटॉल. ये हमने याद रखने डिफरेंट, तो कंपैरेटिव स्टडी करनी है हमने क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी की कौन से फॉर्म्स है, वेदर दे आर फ्रेश वाटर और मरीन. उसके अलावा फिलामेंटस के एग्जांपल याद रखने. सब में क्लोरोफिल कौन सा होता है ये कंपैरेटिव स्टडी करनी है. उसके अलावा हमने ये भी पढ़ना है कि इनमें पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं और इनमें फूड स्टोरेज फॉर्म क्या है. इनको हमने कंपैरेटिव स्टडी ज़रूर करना है. ओके, सो वेजिटेटिव सेल्स के पास सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज which is usually covered by a gelatinous coating of algin. Okay, so जैसे जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे एल्जिन और कैराजीन हमने पढ़े थे, तो वहाँ पे we had studied about the examples जो हाइड्रोकोलॉइड्स और फाइकोकोलॉइड्स के एग्जाम्पल थे. The protoplast contains, in addition to plastids, a centrally located vacuole and a nucleus is also present. Right, so plant body is usually attached to the substratum. Substratum का मतलब है substrate जिसके ऊपर plant body उगी होती है, like which has a hold fast. hold fast क्या है? hold fast is a root like structure. तो ये algae जो है वो primitive type of plants है, तो इनमें root, true root, stem और leaves present नहीं होते, तो इनके root like structure को क्या बोलते हैं? hold fast. so root like structure in case of phaeophyce is known as hold fast और जो stem like structure है उसको क्या बोलते हैं? stipe. so जो root like structure है, इट इज़ नॉट एग्जैक्टली ट्रू रूट बट इट इज़ रूट लाइक, तो इसको क्या बोलते हैं? होल्ड फास्ट. ठीक है, बाकी हमारे पास स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक्चुअल स्टेम नहीं है, तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्टाइप. ओके, एंड फाइनली वी हैव लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ फोटोसिंथेटिक इन नेचर, उसे हम लोग बोलते हैं फ्रॉन्ड. सो ये याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है कि इनके पास ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते, बट दे हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज holdfast type and frond respectively. Okay, now next we are going to talk about is reproduction. इनके केस में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रैगमेंटेशन. ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन किससे होती है? बाय फ्लैजिलेट जूस्पोर से, दो फ्लैजिला वाले जो कि किस शेप के होते हैं? पियर शेप के. वेरी इंपॉर्टेंट. सो पियर शेप के जो होते हैं उनको बोलते हैं पायरीफॉर्म. पियर शेप्ड आर आल्सो नोन एज पायरीफॉर्म टाइप ऑफ what? Zoospores. Clear? And they have two unequally laterally attached flagella. That means अगर इनकी pear shape है इस तरीके की, so they have laterally, जो unequal size के, they have laterally attached flagella. Okay, these are the zoospores in case of brown algae. अब sexual reproduction की बात करें तो sexual reproduction isogamous भी हो सकती है, anisogamous भी हो सकती है और oogamous भी हो सकती है. And union of gametes may take place in water or within the oogonium in case of oogamous species. Oogonium is again a sac-like structure. Gametes are pyriform. यहाँ आ गया pyriform और pear shaped and bear two laterally attached flagella. Examples क्या है common? Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum and Fucus. Okay, ये सारे के सारे किस में आते हैं? Brown algae, right? Laminaria, Fucus and Dictyota, as you can see here. So this is a brown algae which has a holdfast, which is a root like structure. It has a stipe which is a stem like structure,
and frond which has a leaf like structure. They do not have true root stem and leaves. Now again होल्ड फास्ट, ये फ्यूकस का एग्जाम्पल है. फ्यूकस जो है इस केस में मिडरिब प्रेजेंट है, फ्रॉन्ड है, एयर ब्लैडर है. तो हम ये कह सकते हैं कि एल्गी जो हैं वो एवोल्यूशनरी एंसेस्टर्स हैं किसके, हायर प्लांट्स के, क्योंकि ये जो है इनमें रूट लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म होने शुरू हो गए थे जिनसे आगे डेवलप होके क्या बने, एक्चुअल रूट स्टेम्स एंड लीव्स. ओके, सो अगर बात करें डिक्टियोटा की, तो डिक्टियोटा के पास भी स्टाइप और फ्रॉन्ड आपको दिखाई देगा. Okay, next we're going to talk about rhodophyceae or red algae. These are commonly known as red algae because of the predominance of the red pigment. तो इनके जितने भी सारे names हैं वो किसके basis पे हैं, इनके अंदर जो pigments present हैं. Okay, so fucoxanthin और brown algae क्योंकि fucoxanthin या xanthophyll present है, green algae क्योंकि उसमें chlorophyll present है. So यहाँ पे red algae because they have a red pigment which is known as R-phycoerythrin. Okay, R-phycoerythrin की वजह से ये red color की है. सो ज़्यादातर जो रेड एल्गी हैं वो मरीन है और उनमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशंस कहाँ फाइंड आउट होती हैं, इन द वार्मर एरियाज. ओके, दे अकर इन बोथ वेल लाइटेड रीजन्स क्लोज टू द सर्फेस ऑफ वाटर एंड ऑल्सो इन ग्रेट डेप्थ्स इन ओशियंस. वेरी इंपॉर्टेंट, वेयर लिटिल लाइट पेनिट्रेट्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपके पास सी बेड है तो सी बेड पे कौन से वाली एल्गी प्रिडोमिनेंट होगी. सो सी बेड पे कौन से टाइप की एल्गी प्रेजेंट होगी, रेड एल्गी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो ये आपके नीट का क्वेश्चन बन सकता है कि सी बेड पे जहाँ लाइट कम पेनिट्रेट करती है वहाँ पे किस टाइप की एल्गी जो है वो एग्जिस्ट करेगी. सो red algae will be present there. The red thalli of most of the red algae are multicellular. तो usually multicellular algae होती हैं and they can even have a complex body organization. जो storage form of food is Floridian starch, which is very similar to amylopectin and glycogen in nature. तो देख लो यहाँ पे evolution हो गया. So rhodophyceae is higher up in evolutionary history. Okay. So red algae की reproduction कैसे होती है, vegetatively by fragmentation. They reproduce both asexually by non-motile spores, very important, and sexually by non-motile gametes. तो इस केस में gametes और जो spores हैं asexual वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, non-motile होते हैं. Sexual reproduction is oogamous जिसमें एक female gamete बड़ा होता है और male gamete छोटा होता है and is accompanied by complex post-fertilization developments. Examples हैं Polysyphonia, Porphyra, ग्रासिलैरिया एंड जिलीडियम. वेरी इंपॉर्टेंट. याद है हमने ग्रासिलैरिया और जिलीडियम अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले. किस केस में पढ़ा था हमने, लास्ट वीडियो में इसके बारे में पढ़ा था. तो एग्जाम्पल क्या था, ये क्या प्रोड्यूस करते थे, एगर. एगर जो कि क्या था, एक हाइड्रोकोलॉइड. हाइड्रोकोलॉइड का मतलब क्या होता है, जो कि अगर पानी में इसको सोक करके रखोगे तो ये फूल जाता है और इसका बहुत बड़ा साइज हो जाता है. ठीक है, सो इट इज़ अ हाइड्रोकोलॉइड. और कहाँ यूज़ होता था, इन दी माइक्रोबियल कल्चर यूज़ होता है एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो विच टाइप ऑफ एल्गी प्रोड्यूस एगर, कौन सी टाइप की है, रेड एल्गी. कौन सी रेड एल्गी हैं, उनके नाम क्या है, जिलीडियम एंड ग्रासिलैरिया. यहाँ पे डायग्राम में देखो, अगेन दे ऑल्सो हैव फ्रॉन्ड एंड स्टाइप एंड होल्ड फास्ट एंड एग्जाम्पल्स आर पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया. ओके, सो आपके एनसीईआरटी में एक टेबल गिवन है जिसमें एक्चुअली तीनों एल्गी को कंपेयर किया गया है डिफरेंट हेडर्स के अंडर. तो हम इसकी बात करते हैं. तो सबसे पहले क्लास है क्लोरोफाइसी विच इज़ ऑल्सो नोन एज कॉमन नेम ग्रीन एल्गी. कौन से मेजर पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी. वेराज फियोफाइसी ब्राउन एल्गी में कौन से पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए और सी. यहाँ पे किसका डिफरेंस है, बी एंड सी का. सो बी, सी एंड डी. तो 3 क्लोरोफिल है, आपने इसको ऐसे ही याद रखना है, CPR, 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 क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी. और या फिर GBR, ग्रीन ब्राउन एंड रेड एल्गी. जो ग्रीन है उसमें AB होते हैं, ब्राउन में AC होते हैं और रेड में AD होते हैं क्लोरोफिल. ठीक है, उसके अलावा ब्राउन में फ्यूकोजेंथिन अलग से प्रेजेंट होता है, इसमें फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है. फूड जो है वो स्टोर फूड स्टार्च है. यहाँ पे मैनिटॉल और लेमिनारिन है, यहाँ पे फ्लोरिडियन स्टार्च है. सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज एंड एल्जिन की बनी होती है और फाइनली रोडोफाइसी की भी सेल्यूलोज की बनी होती है. जो फ्लैजला के नंबर है 2 to 8 होते हैं, इक्वल हैं और एपिकल मतलब टॉप पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, 2 to 8 फ्लैजला एट द टॉप.
तो इस केस में जो फ्लैजला है पियर शेप्ड इसका गमीट था, फ्लैजला आर प्रेजेंट 2 होते हैं जो कि अनइक्वल हैं और लेटरली प्रेजेंट होते हैं। रोडोफाइसी में सारे के सारे क्या थे, नॉन मोटाइल, ये हमने अभी पढ़ा है वेदर एसेक्सुअल स्पोर्स या फिर सेक्सुअल गमीट्स जो हैं वो सारे के सारे नॉन मोटाइल थे, तो इनके पास कोई भी फ्लैजला प्रेजेंट नहीं होता। हैबिटेट कहाँ रहते हैं ये रहते हैं फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर में। ये रहते हैं फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्ट वाटर में। ये भी सम फ्रेश वाटर में रहते हैं, बाकी ज़्यादातर जो है वो ब्रैकिश वाटर या सॉल्ट वाटर में रहते हैं। सो आई होप इस टेबल से सम अप करना आपको ईजी हो गया होगा। तो यहाँ पर हमारा एल्गी जो है वो फिनिश होता है। आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में हम आगे बात करेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स के बारे में। ओके, सो मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको प्रॉपर तरीके से पता चलता रहे और आप उनको भी फॉलो कर सकें। सो नाउ अब I'll be signing off and see you again in the next video very soon. Until then, keep working hard. Okay, see you. Bye.